क्या हलाल खाना सिर्फ एक धार्मिक प्रथा है या बहुसंख्यक धर्मों के व्यापारियों और ग्राहकों के लिए एक पूंजीगत खर्च ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का बोझ? आइए इस लगाए गए खाद्य अनुपालन के सामाजिक, धार्मिक और वित्तीय प्रभाव और इस अभ्यास को बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने वाली जमीयत के एक बड़े उद्देश्य पर गहरा होता है। नमस्कार, मैं भगीरथ छलार और आप देख रहे हैं द रेटिंग वर्स। वीडियो का उद्देश्य किसी की आस्था या धार्मिक प्रथा पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों को उजागर करना है। आइए मूल बातें शुरू करें। अरबी शब्द हलाल का अर्थ है अनुमति या अलाउड, परमिटेड, और इसीलिए नियत हलाल भोजन इस्लामिक शरिया कानूनों के तहत अनुमति है। हलाल का उल्टा हराम यानी गैर कानूनी है। पशुवध करने की विभिन्न विधियों को पिक्चर को देखिए। जानवरों को मारने का इस्लामी रूप जानवर को गले की नस, कैरोटिड धमनी और श्वास नली को एक तेज ब्लेड से काटकर मार रहा है, जिसे जानवरों ने नहीं देखा है। फिर जानवर को तब तक उल्टा लटका दे जब तक कि सारा खून न निकल जाए, क्योंकि खून का सेवन हराम है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कुछ कंडीशंस दी है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। The term halal is usually reference to the way animals is slaughtered for the consumption. The mandates that the butcher should follow the tenets of Islam. He should be Muslim. The animal that has been chosen to be slaughtered should be disease-free and healthy. The animal should have been bred in a free atmosphere. During the slaughter, the butcher should be invoke the name of Allah with Bismillah, Allahu Akbar. While not mandatory, the animal should be the place in such as that it faces Kaaba in Mecca. Kitida, the direction of the Muslim face while the praying. A sharp knife should be used to safely slice through the animal windpipe, jugular veins and carotid arteries, and blood allowed to drain out. While most societies advocate stunning or rendering the animals uncautious because slaughtering it to reduce pain and shock. Halal bodies usually disregard such a human nature, while Western countries and find these practices inhuman. Islam declares that only meat offering in the fashion is permissible for consumption and holy. So even in a non-Islamic countries, almost 70 to 80% of meat product adheres to the halal way. Some aquatic forms are also halal currently. The emphasis is on the line because the simpler rules of classicity. halal way of a slaughter. सभी मांस को हलाल नहीं बनाया जा सकता है, भले ही इस्तेमाल की जाने वाली वध विधि जैसे सुअर का मांस, गधा, कच्चा, बिल्ली, कुत्ता, सरीसृप, बंदर आदि को हराम माना जाता है। विडंबना यह है कि ऐसे लोग जो इस बात पर कहते हैं कि कौन सा तरीका बेहतर है जिसमें अंततः जानवर की दर्दनाक मौत होती है। शरिया मान्यता के अनुसार भोजन को उपभोग के लिए बनाने के लिए इसे हलाल अनुपालन माना जाता है। भारत में एक गैर लाभकारी संगठन जमात उलमा-ए हिंद हलाल रेस्तरां, होटल, एयरलाइंस, अस्पतालों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसे कई देशों में मान्यता प्राप्त है। यह देश केवल 20% मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि इस्लामिक देशों को भोजन निर्यात करने के लिए एक व्यावसायिक मजबूरी भी है। विश्व स्तर पर यह प्रणाली तालमेल के साथ काम करती है और एक अनिच्छुक व्यापारी को भी हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मजबूर करती है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, अन्यथा यह एक संभावित ग्राहक को हो सकती है। What is halal certification? Halal certification is the recognition that the products are permissible under the Islamic law. These products are edible, drinkable, or usable by the Muslim. Halal certification from Halal Trust, an oldest establishment Islamic organization, helps to build halal consumers confidence without the suspicion or doubt over the consumption of the food products in the restaurants, hotel, or in the form of medicine and vitamins. It is an authoritative and reliable testimony to support food manufacturers claim that their products have met strict halal requirements by the Shariat law. The certified halal food products are not only accepted domestically but are marketable to worldwide halal consumers. This opens an opportunity for export markets, especially in those countries which do not permit sale of non-halal food products. Moreover, halal products are not only welcome by Muslim consumers but by non-Muslim consumers as well. As halal certificates represent high-level produce stream gently under the requirements of the Islamic dietary law. It is estimated that 70% of 1.6 billion Muslim worldwide follow halal food product standard, and that global halal market is currently estimated $600 billion USD. Today, halal trademark is an important marketing tool in the international arena, particularly if the product is aimed at penetrating Muslim countries. Muslim consumers will have a greater confidence in the purchasing such products without questioning in authenticity. Producers who do not have an halal certificate would lose a large segment of potential customers from around the world. In addition, the halal certification is also required by an importer to the country. यदि कोई तर्क देता है कि किसी भी धार्मिक प्रथा को धर्मार्थ होना चाहिए, तो यह उत्तर है नहीं। ऐसा नहीं है। कम से कम इस मामले में फीस स्ट्रक्चर देखिए, इसके बाद कोई स्टडी करें। हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार 50 खाद्य उत्पादकों वाले एक व्यापारी को हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसीलिए देश में 250 व्यापारियों ने पिछले एक दशक में जमीयत को लगभग 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया होगा, और एक व्यापारी इसे कहां से वसूल करेगा? ठीक है, केवल उपभोक्ताओं से। विशेष रूप से जमीयत एक गैर सरकारी संगठन वित्तीय विवरण या प्रमाण पत्र के माध्यम से कमाई नहीं दिखाता है। हलाल अनुपालन केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है, बल्कि हल्दीराम, बीकानो और अमूल जैसे शाकाहारी खाद्य पदार्थों भी इसे प्राप्त कर रहे हैं।
इसीलिए इनके मुस्लिम उपभोक्ता उत्पाद को अधिक आत्मविश्वास से खरीदते हैं और खाते भी हैं। हालांकि पतंजलि को प्रमाण पत्र जारी करने से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपने अपने हाथों से परेशान थे। ऐसा नहीं है कि इस लगभग जनादेश हलाल प्रमाण पत्र को अन्य वर्गों द्वारा कभी अदालत में चुनौती नहीं दी गई थी। 2020 में अखंड भारत मोर्चा ने जानवरों के वध के लिए हालात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पसंद की स्वतंत्रता के कारण इसे शरारती बताते हुए खारिज कर दिया। पूरे खंड में मुस्लिम रोजगार के लगाए गए और एकाधिकार के खिलाफ आवाज को शांत करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में निर्यात मेनू से हलाल शब्द को हटाकर इसे जानवरों का वध किया जाता है से बदलकर प्रतीकात्मक कार्य किया, आयातक देश आयातक की आवश्यकता के अनुसार। आपको पता होना चाहिए कि मध्य पूर्व देशों और वियतनाम में एक बड़े ग्राहक आधार के साथ इस दुनिया में गोमांस के चौथे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में यह व्यापार की मात्रा $3.5 बिलियन है। जमीयत को लौटे यह निश्चित है क्योंकि एक गैर सरकारी संगठन जमीयत के आय पर छूट प्राप्त है। साथ ही एक FCRA पंजीकृत होने के कारण इसे विदेशों से धन प्राप्त होता है। ज्यादातर जमीयत यूके से पिछले 4 वर्षों में इसे 6.7 करोड़ रुपए का विदेशी योगदान मिला है। अब जमीयत की मूल विचारधारा क्या है और इन फंडों का संभवतः उपयोग कहाँ किया जा रहा है? जमीयत वेबसाइट के अनुसार यह खिलाफत आंदोलन 1919 के परिणाम का परिणाम है, जो माना जाता है कि भारतीय मुसलमानों के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए देशवासियों का समर्थन अंततः तुर्की के खिलाफत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। November 1990, the Revolutionary Ulama on the occasion of the Khilafat Conference held actively resolved to constitute a new organization for carrying a non-violent freedom struggle in operation with the fellow countrymen. The organization was designated as the Jamiat Ulama Hind. Mufti Azam Maulana Kifayatullah was elected as the first president. The establishment of the organization was a decisive turning point in the revolutionary movement. They gave up armed struggle and chose non-violent struggle and adopted non-cooperation. The strategy eventually led to freedom of the country. ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कि इनकी वेबसाइट पर लिखा है। हालांकि जमीयत के विजन मिशन स्टेटमेंट पर राष्ट्र निर्माण अभ्यासों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य इस्लामी विश्वास की रक्षा करना है। इसके स्थापना के मूल विचारधारा को समझने के लिए ये देखिए। Our vision: protection of Islamic beliefs, identity, heritage, and places of worship, securing and safeguarding civil, religious, cultural, educational right of Muslim, social education, and religious reform among the Muslims, establishment of the institution for a progress and stability, education, cultural, economic, and social affairs of Muslims. Our mission: fostering and stabilizing amicable relations between different communities living in the Union of India in accordance with the teachings of Islam, the revival of Arabic and Islamic studies, and framing syllabus and curriculum according to the needs of the present age. Our objectives: dissemination and propagation of the teachings of Islam, management and protection of Islamic Waqf. जमीयत यूथ क्लब के उद्देश्य पर 2 मिनट का समय बिताएं, जैसा कि जमीयत की वेबसाइट से लिया गया है। एक्शन प्लान: 12.5 million youth shall be prepared for Jamiat Youth Club during next 10 years till 2028. According to the plan, 20,000 fresh members shall be enrolled in 2021. Objectives: Jamiat Youth Club has a twin objective that find their reference in the tradition of the Prophet of Islam. First, producing and preparing strong mu'min. This objective finds its resonance with the Prophet saying that a strong mu'min is the dearer of Allah Almighty than a weaker one. Second, preparing women for serving in humanity that a prophet of Islam is reported to have said, the best among people are those who benefit mankind. 31 number of a district where Jamiat Youth Club established. यही उनके पहलों में भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए जमीयत का लक्ष्य मुस्लिम उम्मा की हितों की रक्षा के लिए 2028 तक 12.5 मिलियन मजबूत मोमिन तैयार करना है। ट्रेनिंग कैंप ज्यादातर यूपी में है, जहाँ 19% आबादी मुसलमानों की है। एक ट्रेनिंग की लागत 9,558 रुपए प्रति वर्ष नहीं थी। यह लगभग 12,000 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अब जमीयत के यूथ क्लब के उद्देश्य को समझने के लिए 2 मिनट का समय दें। जमीयत का मुख्य उद्देश्य इमामों, मदरसों के शिक्षकों को सहायता प्रदान करना, भारत में 30,000 मदरसों का उत्थान, सामुदायिक साथियों को छात्रवृत्ति, मस्जिदों का निर्माण आदि करना है। देवबंदी विचारधारा के स्कूल जमीयत ने भी जमात एजुकेशन फाउंडेशन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है। हाल ही में एक धर्मनिरपेक्ष कदम जमीयत ने गैर मुसलमानों को स्वीकार कर लिया, लेकिन बुरी तरह से गिर गया। कुछ महीनों के भीतर उन्होंने गैर मुसलमानों से अपील की कि वे अपनी बेटी को अनाथिता से दूर रखने के लिए सर्व शिक्षा विद्यालय में भेजे। एक प्रकाशन गृह चलाने के अलावा जमीयत समुदाय में केवल जरूरतमंदों को कानूनी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। जमीयत भी कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपों को समर्थन करने के लिए सहमत हो गए थे, क्योंकि वे गरीब थे। समाचार कवरेज और बयानों की जांच करें। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अच्छी तरह से स्थापित हलाल अर्थव्यवस्था एक ट्रस्ट द्वारा सभी उपभोक्ताओं पर व्यापक रूप से लगाया जाता है और धन को बड़े पैमाने पर एक समुदाय की गतिविधियों में अपराधियों की सहायता से लेकर समुदाय सेना के निर्माण तक उपयोग किया जाता है। ध्यान दें कि हलाल परिस्थिति तंत्र एक सदियों पुरानी प्रथा है। हालांकि सामाजिक स्तर पर घटना होती है। इसके विपरीत जैसे जोमेटो एक ट्वीट में भोजन का धर्म नहीं होता, लेकिन भोजन को हलाल के रूप में एक मुहर लगाता है। एक जैन बेकर को सांप्रदायिक माने जाने वाले जैन कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था और कुछ हिंदू तीर्थ यात्रियों को रेलवे मार्गों पर सात्विक प्रमाण पत्र के साथ IRCTC के कदम के लिए आलोचनात्मक विचार आ रहे हैं।
अब अगली बार जब कोई हलाल प्रमाणित आइसक्रीम खरीदता है तो याद रखिए, इसका एक हिस्सा संभवतः मदरसे का भुगतान कर रहा है या अशांति को प्रायोजित कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दूसरों को स्थान का अतिक्रमण नहीं करना है और एक प्रथा दूसरों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से अन्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।